Hello, students. Hello and welcome, everyone. This is Abhishek Tiwari here. So, students, for the very second time after the very first lesson, which was childhood, okay, which we have accomplished last day. After it, very first time, I'm here representing you the language portion, the very first topic of language portion, okay, here in the second term, which is poster making, okay. Dear students, I would tell you everything. I would try to go at every nook and corner of this in the post making. Okay, so don't ever try to be bored with it. You will get a very interactive session here of post making, and I would try to tell you everything regarding this so that no any query would yet remain with it. So please, I only request you to pay attention and listen and watch it carefully. Okay guys, let's move toward the topic poster making. In just one take, I would simply clear your all the doubts of poster making, so please watch it carefully. Okay, so starting with the definition of it. Okay, the definition of it and that is, okay, poster are placards displayed in a public place announcing or advertising something. Okay, in a very short way, okay, in nutshell, we can only understand the poster making is nothing but a preparing display cards or placards, okay, display cards for displaying in a public place, okay, announcing or advertising something, where your sole purpose is to announce or advertise something. okay, let me tell you in Hindi, posters एक तरह के डिस्प्ले कार्ड्स होते हैं बच्चों, जिनका इस्तेमाल जो है पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक अवेयरनेस और अनाउंसमेंट के लिए किया जाता है, या फिर कुछ चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो आई होप आप शॉर्ट में समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ अ पोस्टर मेकिंग. क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड on based on what is poster making, okay, but it's simply as we are starting, so we should get to know about it in short, what does that means. Okay, however, let's move further, talk about the purpose. We have done definition, let's talk about the purpose. As I told you, I would tell you everything in great detail, so don't worry. Okay, social awareness. पहला पर्पस क्या होता है इसका? सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना. पोस्ट मेकिंग का जो प्राइम फोकस होता है, पर्पस होता है, इंटेंशन होता है, वो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना होता है. ओके, अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करेंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स. और उसका जो दूसरा पर्पस होता है, इश्यूज रिलेटेड टू करेंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, कि जो करंट प्रॉब्लम्स और नीड्स हैं उनसे जुड़े हुए इश्यूज़ को राइज अप करना, उनसे जुड़े हुए इश्यूज़ को रेज अप करना. ठीक है, ये दूसरा पर्पस होता है. ठीक है, पोस्ट मेकिंग का, कि जो करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स हैं समाज में, ऐसी बहुत चीज़ें कि प्लांटेशन एक नीड है आज की. ठीक है, करंट प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ये तमाम ऐसे करंट प्रॉब्लम्स और नीड्स हैं. ठीक है, जिसके ऊपर जो है सोशल अवेयरनेस और ऐसे इश्यूज़ पे पोस्टर ड्रॉ करके लोगों के अट्रैक्शन, लोगों की जो है अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए, और इसमें पोस्टर मेकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है. However, let's move further toward the main features of poster. In short, let me tell you what is the main features of a poster. Okay, so let's see everyone. Okay, first feature of poster making is visually attractive और eye catching. एक पोस्टर हमेशा विजुअली अट्रैक्टिव मतलब दिखने में एकदम आकर्षक होना चाहिए और आँखों को शूट करता हो, आँखों को, उन आँखों के अट्रैक्शन को कैच करता हो. ठीक है, आई कैचिंग मतलब कि आँख देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाए उस चीज़ के प्रति. दूसरा इसका फीचर होता है टाइटल सजेस्टिव एंड कैची. जो इसका टाइटल हो वो सजेस्टिव होना चाहिए, और कैची मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए. टाइटल इसका सजेस्टिव, कुछ चीज़ सजेस्ट करने लायक और अट्रैक्ट करने लायक वाला हो.
कि जो अट्रैक्ट करता हो, बस टाइटल पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए चीज़ों के बारे में, ठीक है। तीसरा होता है यूज स्लोगन्स, जिंगल और शॉर्ट वर्सेस, कि आप उसमें जो है स्लोगन्स का इस्तेमाल कीजिए। अट्रैक्टिव स्लोगन्स लोग बनाते हैं अपने आप से, आप इंग्लिश के स्लोगन्स डेवलप कीजिए। जिंगल, शॉर्ट जो है पोएटिक वर्सेस हो गई, ये सब चीज़ों को आप बना करके उसमें एक लाइन के रूप में लिखेंगे। ओके, लाइक वेयर देयर इज नीड देयर इज ग्रीड, देयर इज ग्रीड वेयर देयर इज नीड। ओके, सो ऐसे ये क्या एक स्लोगन, एक यू नो इफ़ देयर इज़ नो वाटर नो लाइफ, ऐसे करके जो है शॉर्ट जिंगल से स्लोगन्स का इस्तेमाल की जाती है। स्केच और मेक सम सिंपल ड्राइंग, यहाँ पे आप स्केचेस बना सकते हैं। जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं पोस्टर, उसके जुड़े हुए, उससे एसोसिएटेड स्केच बना सकते हैं, या कुछ सिंपल ड्राइंग्स आप वहाँ पे पेज पे साइड में कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स है, अलग अलग तरह के शेप्स और उनको शेड दे सकते हैं। लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को शेड दे सकते हैं। ये सारे काम आप इसमें पोस्टर में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, हर एक लाइन के बीच में एक प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होनी चाहिए, इनके बीच में एक अंतर होना चाहिए, एक रेशियो वाला अंतर होना चाहिए, कम से कम साफ सुथरा दिखाई पड़े, इस चीज़ का ध्यान देना है। सो प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर, जो पोस्टर का थीम है या उसका सब्जेक्ट है वो भी एकदम क्लियरली इलस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसेंशियल डिटेल्स। अब पोस्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उनको भी आपको पोस्टर में जगह देना है, तो स्पेसिंग ख्याल रखना आपका काम होता है, पोस्टर मेकर का काम होता है इसेंशियल डिटेल्स के ऊपर भी फोकस करना। फिर होता है ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, यूजुअली 50 वर्ड्स, जो वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रख के चलना है, जो कि 50 वर्ड्स होती है। इससे ऊपर आपको जो है एक पोस्टर को जो है राइटिंग करने में या ड्रॉ करने में उससे ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो होता है वो मार्किंग स्कीम होता है। हम उसको ध्यान दे लेते हैं कि जो फॉर्मेट होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है मार्किंग स्कीम में, कंटेंट को भी 1 नंबर मिलता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। और इसके बाद होता है एक्सप्रेशन। कंटेंट और फॉर्मेट और एक्सप्रेशन एक एक मार्क्स का होता है, टोटल 3 मार्क्स का मार्किंग स्कीम होती है। किसका? पोस्ट मेकिंग का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट मेकिंग जो है फॉर्मेट 1 नंबर का होता है। फॉर्मेट का मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक फॉर्मेट, अभी मैं पढ़ाऊँगा इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट होगा कंटेंट, ठीक है। एक पोस्टर के जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कंटेंट 50 वर्ड्स के होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। एक्सप्रेशन, ग्रामर से लेके तमाम ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये एक्सप्रेशन में शामिल होता है, तो 3 मार्क्स का होता है। बात कर लेते हैं फॉर्मेट का। फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है कि आपको एक हमेशा से जो है इसको आउटलाइन लिखना होता है, ये कंपलसरी होता है कि आप एक बॉक्स में लिखिए आप एडवर्टाइजमेंट को, लाइक अ नोटिस। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में अंतर इतना होता है कि नोटिस केवल वर्बली होता है, वर्ड्स उसमें शामिल होते हैं, और पोस्टर मेकिंग में उसमें अट्रैक्टिव जो है शेड्स और इसके अलावा जो है आपको उसमें शेप्स और स्केचेस ड्रॉ करने होते हैं। टेक अ लुक। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, सबसे पहले कौन अथॉरिटी इशू कर रहा है नोटिस पोस्टर को, उसको लिखिए। एक टैगलाइन आपको देनी होगी, एक स्लोगन नुमा जो है टैगलाइन होता है, वो टैगलाइन या स्लोगन आपको यहाँ लिखना होता है। फिर टाइटल और नेम ऑफ द इवेंट, कि कौन सा इवेंट हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर ड्राइंग या फिर जो है ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के हैजार्ड्स को, प्लास्टिक के नुकसान को बताया जा रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर आप लिखते हैं, टाइटल हो गया। स्पेशल अटेंशन अगर कुछ है उसमें तो स्पेशल अटेंशन भी आपको देना होता है, ठीक है। अटेंशन मतलब कि आप उसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे आप एक पोस्टर ड्रॉ कर रहे हैं, पोस्टर में आप एक बता रहे हैं कि कोई साड़ी का सेल लगा हुआ है,
तो सेल के बारे में आप बता रहे हैं कपड़ों के, तो कपड़ों में कौन कौन से कपड़े मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे कितने कितने टाइप के कपड़े मिलेंगे, वेस्टर्न होगा, इंडो वेस्टर्न होगा या फिर क्लासिक होगा, ये सब का डिटेल आपको देना होगा। फिर इलस्ट्रेशन विथ अ कैप्शन, आपको कुछ न कुछ कैप्शन के साथ ड्राइंग करनी पड़ेगी, ड्राइंग वगैरह उसके नेम के साथ जो है आपको ड्रॉ करना होगा, कैप्शन देना होगा। व्हेन एंड वेयर इवेंट्स एंड वेन्यू लिखना होगा, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आपको मेंशन करना होगा। अगर एंट्री फीस उसमें दी है कुछ, तो आप एंट्री फीस लिखेंगे अगर दी है तो। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जुड़े हुए, वो आप लिखेंगे। लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर देंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट होता है पोस्टर मेकिंग का। आपको ध्यान इतना रखना है कि पोस्टर हमेशा सेंटर अलाइंड होता है। क्या होता है? सेंटर अलाइंड होता है, मतलब आपको इसको सेंटर में ही लिखना है, किनारे से स्टार्ट नहीं करना है, सेंटर अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देंगे। ओके, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कौन से पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है, मतलब कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। एक पोस्टर बनाने के समय कौन से पॉइंट्स को याद रखने होते हैं? पहली चीज़ है विद इन द वर्ड लिमिट, 50 वर्ड है तो आपको 50 वर्ड में ही लिखना है, उसके लिमिट को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है इन अ बॉक्स विद इन 1 पेज 50 वर्ड्स में, और एक बॉक्स के अंदर आपको लिखना है या ड्रॉ करना है, एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो तीसरी चीज़ क्या आती है? वो आता है बोल्ड टेक्स्ट और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि ये विशेष चीज़ है, जहाँ विशेष ध्यान देना है, वहाँ पे बोल्ड कर दिए टेक्स्ट को, या टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, वो आपका काम करना है आपको, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रामर एंड स्पेलिंग्स चेक, वो भी आपको करते रहना है कि ये ग्रामर और स्पेलिंग चेक होना चाहिए, मतलब कि ग्रामर और स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको इसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स पोस्टर मेकिंग के बारे में हम लोगों ने इसकी डिटेल्स को स्टडी किया है। अब आगे इसके बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि अब पोस्टर मेकिंग का जो है एक एग्जाम्पल देख कर इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। लेट्स लुक अ एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल आपके सामने है, लेट्स स्टार्ट इट। एग्जाम्पल ये कह रहा है डिज़ाइन अ पोस्टर टू लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन इन द एरिया सराउंडिंग योर स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल के आसपास के एरिया में आपको ट्री प्लांटेशन कैंपेन करना है, उसको लेकर के आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब पोस्टर सामने आपको दिख रहा है कि देखिए कैसे शेड्स मैंने दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट शेड्स हैं। प्लांट ट्रीज ये हो गया टाइटल, लीव लॉन्गर, ठीक है, एंड लीव लॉन्गर ये हो गया आपका स्लोगन या टैगलाइन। जॉइन ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑन संडे 16 दिसंबर 2022 एट 9 AM एट, ओके, ये टाइम हो गया, ये वेन्यू हो गया, आदर्श सीनियर, ओके, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, ओके, लाइक दिस। नाउ रिमेंबर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, नीचे इसके बेनिफिट्स दिए हैं ट्रीज के, ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्री वगैरह जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्री वगैरह यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉ करके आप एक बॉय बना सकते हैं जो कुल्हाड़ी या फिर एक्स लेके खड़ा हो, ठीक है। यहाँ नीचे लिख दीजिए, उसके कैप्शन लिख दीजिए से नो, ठीक है ना। ऐसे चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं साइड साइड में। इसके अलावा जो ये देखिए बेनिफिट्स दिया है, रिलीज ऑक्सीजन, ब्रिंग रेन, प्रोवाइड फूड, सक कार्बन, चेक सॉइल इरोजन, ये सब चीज़ें आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक लाइन मेंशन करनी होगी, ठीक है। ट्रीज लीव फॉर अस, ओके, लेट्स प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड, ठीक है। पेड़ हमारे लिए जीवित हैं, हमारे साथ जीते हैं, हमारे अपने दोस्त को सुरक्षित रखना चाहिए ना। ये चीज़ें आप एक लास्ट में लाइन देंगे। सो इस तरीके से आपको एक लुकिंग आई कैचिंग जो है, आपको एक क्या करना है कि एक आपको पोस्टर ड्रॉ करना होता है, बट आपको स्केचेस वगैरह मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आपको कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हो गई स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही ना। इसके बाद जो है मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, और आपसे 1 या 2 दिन कम से कम प्रैक्टिस कराऊंगा
पोस्टर मेकिंग का. ऑलराइट, दिस इज व्हाट द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ओके.